Welcome students. So we are solving some problems from mechanical properties of fluids. So let's see the problem number 10. Okay, so first I will read the problem. Find the pressure 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere. Density of seawater is 1060 kilogram per meter cube. So here we have to find the pressure 200 meter below the surface of the ocean. Okay, if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere and density of seawater is 1060 kilogram per meter cube. So first I will write what they have given us. The value of H we can write that is 200 meter, then atmospheric pressure P atmospheric, that is 1 atmospheric pressure, and density of seawater, that is 1060 kilogram per meter cube. See what exactly is. So basically we have to find the pressure at the point below 200 meter. Okay, so at this point we have to find the pressure. So in this case the point is below the ocean at 200 meter. So here we have to find the pressure. So the value of H, that is 200 meter, and here the atmospheric pressure, जो atmospheric pressure होगा वो क्या होता है, नॉर्मली अभी हमें यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू फाइंड करने का है, लेकिन यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है वो कितना दिया है हमें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हम सबको ये वैल्यू याद रखना ज़रूरी है. कौन सा वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो कौन सा है, दैट इज़ 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कभी कभी क्या होता है वो 2 एटमॉस्फेरिक, 5 एटमॉस्फेरिक, दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय गिवन नंबर. ओके, सो अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1.013 इंटू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. And density of sea water, that is 1060 kilogram per meter cube. Okay, so this is the problem in which we have to find the total pressure. अभी यहाँ पे total pressure क्या है ये हम find करेंगे. See what exactly is. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो total pressure होगा, okay, that total pressure will be atmospheric pressure plus that pressure due to liquid column. So what will I will write, total pressure is equal to atmospheric pressure plus pressure due to liquid column. Okay, और liquid के वजह से भी यहाँ क्या होगा, प्रेशर होगा. So atmospheric pressure के लिए हम अभी क्या करेंगे, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस अभी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, रो एच जी. सो व्हाट इज हियर रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड. यहाँ पे कौन सा है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर है. एच क्या है, उसका जो टोटल लेंथ था वो कितना था, 200 मीटर. जो हाइट था वो हम लेंगे 200 एंड जी का वैल्यू आप लिखेंगे 9.8. So here you will write 1.013 into 10 to the power 5 plus what is the value of rho, that is 1060 and h का वैल्यू है 200 and g का वैल्यू है 9.8. Okay, just write it carefully. Now you can see here यहाँ पे कितना है, 10 to the power क्या है, 5 है. Okay, so what I will going to do, just once again write 1.013 into 10 to the power 5 plus अभी यहाँ हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको भी 10 to the power 3 के लिए निकालेंगे. तो इसको हम लिख सकते हैं 1.060. सो दिस विल बी 10 to the power 3. एक वैल्यू है हमारे पास.
अभी यहाँ पे 1.060 10 to the power 3 है, ओके, इंटू 2 इंटू 10 to the power 2 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 10 to the power 2 एंड इंटू 9.8, ओके। सो 1.060 इंटू 10 to the power 3, 2 इंटू 10 to the power 2, 9.8। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1.013 इंटू 10 to the power 5 प्लस, ठीक है, अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1.060, ओके, इंटू सी 2 इंटू 8 16 पावर 1, 2 इंटू 9 18 प्लस 1 दैट इज 19, दिस इज 19.6 एंड ये 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 2 है, इसका हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5। फर्स्ट नोट डाउन दिस केयरफुली। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 10 टू द पावर 5 है वो क्या होगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है। सो अभी मैं इसे लिखूंगा P इज इक्वल टू, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, सो यू कैन राइट 1.013, ओके, प्लस 1.060 इंटू 19.6। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी 10 टू द पावर 5 कॉमन निकाला है, ओके। सो हियर यू कैन राइट 10 टू द पावर 5। सो नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट 19.6 इंटू 1.060। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये और इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट यूज़ लॉग टेबल केयरफुली and finally we will get our total pressure, that is 21.789 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप लॉग करके यूज़ करके फाइंड करेंगे और आपको आंसर जो मिलेगा 21.789 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग लॉग टेबल। ये पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसका एडिशन। सो दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू। सो वी विल सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। So next problem is problem number 11. In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 centimeter square and the output piston had surface area of 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on output piston. So see here, in case of hydraulic lift, यहाँ पे क्या है, हमें इनपुट पिस्टन और आउटपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन एंड आउटपुट पिस्टन, दो पिस्टन होते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, जो फर्स्ट सरफेस एरिया दिया है फॉर इनपुट पिस्टन, आई विल राइट एरिया, सो दैट इज A1, ओके। सो ये क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ओके। Next, and for output piston we have area that is 1500 centimeter square. Next, जो यहाँ पे फोर्स है F1 का जो वैल्यू है वो दिया है 25 न्यूटन and we have to find F2, okay. Calculate weight on output piston, F2 निकालेंगे तो वही क्या होगा, यहाँ पे वेट होगा। सो बेसिकली फॉर इनपुट पिस्टन वी हैव एरिया दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड F1 का वैल्यू क्या है 25 न्यूटन, A2 का वैल्यू क्या है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर और F2 का वैल्यू हमें क्या करने का है, फाइंड करने का है. ओके, सो आफ्टर कन्वर्टिंग यू कैन सी हियर, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसे हम क्या लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, और इसे हम क्या लिखेंगे 1500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सो वी जस्ट कन्वर्टेड अवर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर. अभी आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा, जो इन केस ऑफ इनपुट पिस्टन एंड आउटपुट पिस्टन द प्रेशर विल बी सेम. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो फॉर इनपुट पिस्टन आई विल राइट P1 एंड फॉर आउटपुट पिस्टन वी हैव टू राइट P2. So what is the formula for pressure? We know that pressure is equal to force upon area. यहाँ पे भी लिखेंगे force upon area. So just write F1 A1 and here F2 A2. So this is very easy problem. जो रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम थे उससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के प्रॉब्लम बहुत ही इजी है. ओके, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फार्मूला यूज करके हम आंसर निकाल रहे हैं, बट इन केस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स वी हैव टू यूज सम फार्मूलेज इन केस ऑफ अनदर प्रॉब्लम्स. सो एक फार्मूला दूसरे इसमें यूज करना पड़ता था, थोड़ा एप्लीकेशन ज़्यादा था उधर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. सो अभी यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने का है, F2 फाइंड करने का है. सो यू कैन राइट हियर F2 F1 into A2 divided by A1. So now just put the value. What is the value of F1? F1 का वैल्यू क्या है 25. ओके, इंटू A2 का वैल्यू क्या है 1500 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय A1 का वैल्यू क्या है 30 इंटू 10⁻⁻4. Okay, so now this 10⁻⁻4 and 10⁻⁻4 will get cancel. अभी ये जो 0 है ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया. So F2 is equal to 25 into, so 3 5 are 15 एंड यहाँ पे 0. इसका हमने डिवीजन किया है तो कितना मिला है 50. सो अभी वेरी इजी आपको क्या करने का है, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने का है, और जो F2 का वैल्यू है ये अभी क्या होगा हमें मिलेगा, क्या होगा फाइनली F2. सो 25 इंटू 0 दैट विल बी 0. सो 25 5 कितना होता है 125. सो 125. सो दिस विल बी आवर आंसर 1250 न्यूटन. ओके, सो ये है हमारा F2 का वैल्यू, दैट इज 1250 न्यूटन. ओके, यूनिट आपको बरोबर देने का है. सो लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 12. So first I will read. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 Newton s per meter square. So they have given us diameter, that is D. D is 1 millimeter. नेक्स्ट वेलोसिटी का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड. द कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम ईटा से दिखाते हैं, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन एस पर मीटर स्क्वेयर. एंड वी हैव टू फाइंड विस्कस फोर्स, जो F का वैल्यू है
वो हमें यहाँ पे क्या करने का है, फाइंड करने का है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसका है, डायमीटर का है। ओके, सो एंड जो सेकंड वैल्यू है वो कौन सा है, वेलोसिटी का है। और थर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है हमें, विस्कस फोर्स। सो बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली F इज इक्वल टू 6 पाई eta RV. This is the formula from Stokes law. So you have to use this to find the viscous force. What is here, eta? Eta is the coefficient of viscosity, R radius है और V क्या है, velocity. Just now you have to put the values, but you can see here they have given us diameter. So just convert diameter into radius. So R is equal to क्या होगा, D by 2. So 1 by 2 that is 0.5 है, लेकिन ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर का कन्वर्जन हम करेंगे वो क्या मिलेगा हमें, 0.5 इंटू 10⁻³ और इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, सो you have to use Stokes law here, and that is F is equal to 6 pi eta RV. okay, ये जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ, रेडियस के साथ और वेलोसिटी के साथ। यही हमने स्टोक्स लॉ में देखा था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। F 6 इंटू 3.142 इंटू ईटा का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ओके, R का वैल्यू क्या है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴, एंड जो V है वो है 2। ओके, सो नाउ so first you have to write the formula correctly, then just put the values correctly, and then there is a process of calculation. okay, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.142 इंटू 6 8 जा क्या होगा 48। ओके, 6 1 6 and 4 that is 10. Now you can see here there is 10⁻⁻5 and 2 5s are 10 into 10⁻⁻4। अभी ये जो कैलकुलेशन है ये आपको अच्छी तरह से करने के हैं, और ये कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली you will get value that is 3.393 into 10⁻⁻7 ओके न्यूटन। कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करने के हैं। यू कैन यूज हियर लॉग टेबल। सो द वैल्यू इज 3.393 into 10⁻⁻7 न्यूटन। So this is the viscous force. Okay, so let's see next problem. Problem number 13. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻⁻2 meter square.
with a velocity of 2 into 10 to the power minus 2 meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power minus 3 meter thick, find the coefficient of viscosity of oil. So first I will write what they have given us. So first value is 1 न्यूटन. ये जो फर्स्ट वैल्यू है फोर्स की है वो है 1 न्यूटन. The area of metal plate, that is 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वेयर. वेलोसिटी जो है वो है 2 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकंड. The coefficient of viscosity, that is eta. eta का वैल्यू है 1.8. Okay, so let's check carefully. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 to the power minus 2. जो वैल्यू है वो यहाँ पे ओके एरिया का जो वैल्यू है यहाँ पे 10 टू द पावर क्या है -2 मीटर स्क्वेयर. नेक्स्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो है 2 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड. And when it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power -3 मीटर thick, so that is x. वो जो है x का वैल्यू है 1.5 into 10 to the power -3 मीटर. Find the coefficient of viscosity, that is eta. Okay, let's check once again. So a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 to the power -2, velocity 2 into 10 to the power -2 meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 into 10 to the power -3 meter thick, find the coefficient of viscosity. See, a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area. एक यहाँ पे क्या है मेटल का प्लेट है, ठीक है. वो मेटल का प्लेट जो है वो कहाँ पे है ऑयल के लेयर पे है. सो लेट अस कंसीडर दिस इज द लेयर ऑफ ऑयल. यहाँ पे जो फोर्स हमें लग रहा है वो कितना दिया है 1 न्यूटन दिया है, ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम केयरफुली, देन यू कैन डू इजीली कैलकुलेशन. मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 टू द पावर -2. ये जो मेटल प्लेट है इसका एरिया हमें दिया है क्या है 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वेयर. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 into 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है वो कितना है v. हम इसे क्या लिख सकते हैं dv लिख सकते हैं. ओके, ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, यहाँ पे जो ऑयल का जो थिकनेस का लेयर दिया है, सो दैट वी कैन कॉल एज dx. So I will write here instead of x, that is dx, that is 1.5 into 10 to the power -3. So now we can find this force by using F is equal to eta to a into dv upon dx. So ये जो फॉर्मूला है हमने देखा था in case of coefficient of viscosity, F is equal to eta into a into dv upon dx. So what we are going to find here, जो eta होता है वो क्या होता है coefficient of viscosity. So F is equal to eta into a into dv by dx. So this formula we are going to use. So what will be eta? F into ये dx ऊपर जाएगा, ठीक है, dx upon dv डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा एरिया. ओके, सो F इज इक्वल टू क्या था इटा इंटू ए इंटू डी बी बाई डी एक्स. सो इटा इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स और a इंटू डी बी क्या होगा डिवीजन में आएगा. सो यू कैन राइट नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स. क्या है फोर्स का वैल्यू 1, एरिया का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स, दैट इज 1.5 into 10 to the power -3 and the value of velocity is 2 into 10 to the power -2. okay, so अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 and 2 का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा
0.75. ओके, ये 1.5 को हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ये पॉइंट है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया, 2 7 ज़ा 14, 1 इज रिमेनिंग, सो 2 5 ज़ा 10, एंड यहाँ पे क्या है 10 to the power -3. ओके, सो -2 एंड -2 ये क्या होगा 10 to the power -4. In next step I will write here, so eta is equal to 0.75 10 to the power -3, ये -4 ऊपर जाने के बाद +4. ओके, सो हियर eta is equal to 0.75, ये +4 -3 that will be 10 to the power +1, and this will be 7.5. okay, so this is our answer, eta is equal to 7.5, right? So that is Newton s upon meter square. This is the unit of coefficient of viscosity. Okay, so I hope you like this video, so just like, share and subscribe our channel. Thank you very much.